में आने का ख्वाब कब देखा था, रीज़न क्या था? मैंने नहीं सोचा था ग्लैमर इंडस्ट्री के बारे में पहले शुरू में, बिकॉज आई wanted to be an army officer in the beginning. So I started doing 3 years of NCC course I have done. So basically, as I'm from Haryana, so it was little strict for me to come outside and do the glamour roles and something like that. So I did that 3 years of NCC course, but somehow when I shifted to Delhi, so I thought ki I should start with the modeling. Then I thought of it. I have done 2 years of job in Delhi, and then I have started with modeling. फिर पोर्टफोलियो बनवाया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मूवीज़ में भी एक बार चांस लेके देख सकती हूँ. उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आई. I came here and I shifted like for it's been now 1.5 years I'm here. So I have done a lot of print shoots, lots of ads. I will say I have just done 2 or 3 ads I have done. After that, I started with there is one of actors, so I have signed up a film with him. So I won't disclose the name of that film because it's going to release in 2016. After that, in 2014 again, when I shifted here, so I have done Miss Magazine 2014 again. So I was the first runner-up in that. And so this is how, I started my journey with it. And now I'm doing really great, and God has been so kind for me. So shifting from Haryana to Delhi, how far it was easy to convince your family as such? I mean, was it easy, difficult? It was, of course, it was difficult because my family is really, Haryanvi culture, as everybody is aware about that. Haryanvi culture is something like they are very conservative, and my family, of course, very conservative. But my mom, she is, my mom and my sister, they're really supportive. So they always support me. But yes, just because of my mom, so I convinced her that I have to go to Delhi and I have to, job, and I have to do so many things because I want to grow in my life. So I cannot stay here like other girls. So I cannot be at home because as everybody knows कि हरियाणा में सभी के सब लोग खास तौर पर लड़कियाँ सिर्फ घर में रहती हैं. घर के अलावा उनको कोई कुछ काम नहीं होता है, या तो पार्लर का काम कर लेती है या फिर कुछ और, बट स्टडी भी कर लेती हैं, लेकिन उनको बाहर जाने का इतना मौका नहीं मिलता है. सो आई ब्रॉक दैट आइज देन, and then I shifted. My mom, she was in the starting, she was a little upset because I was new to Delhi, because basically I'm from village. So it was quite for me, you can say मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा दिल्ली में आना उस टाइम पे. फिर आने के बाद I started doing job, एंड धीरे धीरे मैं समझ गई, और एक उस चीज़ से निकल के, लाइक सूट सलवार से निकल के और सिर से दुपट्टे से निकल के, फिर आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग. इट वाज लिटिल नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, बट आई स्टार्टेड डूइंग. कल मलिका शेरावत, वो भी काफी रेबेलियस है, उन्होंने घर से झगड़ा करके आया, इंडस्ट्री में आई और हॉलीवुड में भी जान पहचान बनाई, तो उनसे भी सीखा आपने, इंस्पायर्ड हैं आप? हाँ, ऑफ कोर्स उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बिकॉज उन्होंने सबसे पहली, आई गेस, वो लड़की हैं जिन्होंने हमारे हरियाणा का नाम ऊपर किया. शुरू में सब लोग कह रहे थे कि कितनी बोल्ड चीज़ें की हैं, कुछ करने को और नहीं था क्या, बिकॉज एक लोगों की मेंटेलिटी होती है वैसी. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो ग्रो करती गई, और ऑब्वियसली एक हरियाणा से निकल के और एक इतना बैकवर्ड एरिया से निकल के एक ग्लैमर इंडस्ट्री में आना, तो ये अपने आप में एक टास्क होता है. सो शी हैज स्टार्टेड and she was the priority also, and then I thought of it that if she can do, then I also can do. हरियाणा में मालूम है कि कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन निकले थे, स्पोर्ट्स में कभी रुचि थी आपकी ग्लैमर इंडस्ट्री के अलावा? स्पोर्ट्स में मेरा कभी नहीं रहा. स्पोर्ट्स में कभी कोई रुचि नहीं? नो. लेकिन ये बताइए, पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या मिला था आपको, पहला मॉडलिंग असाइनमेंट दिल्ली आई तो क्या था, याद है आपको? यस, पहला असाइनमेंट मुझे मिला था होम शॉप 18 का. बिकॉज व्हेनेवर द मॉडल दे स्टार्ट डूइंग वर्किंग, देन दे गेट्स फर्स्ट, दिस इज द थिंग ओनली दे गेट. और फाइनली दिल्ली में अपने अचीवमेंट्स की, तो फाइनली मुंबई में आने का प्लानिंग कब किया कि मुझे मुंबई जाना है, मुंबई में अपना नाम बनाना है? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे अपना नाम बनाना है, या फिर मुझे फिल्में करनी है, या फिर ऐसा कुछ मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था. जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था, वो भी उस टाइम पे मेरे माइंड में नहीं था, बिकॉज स्टार्टिंग से मैंने नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री में ज्वाइन करूँगी. जब मैं यहाँ पे आई थी तो आई एम सॉरी, ओके, सवाल पूछता हूं फिर से. दिल्ली से मुंबई आने का प्लानिंग कब हुआ? आपका लगा कि मुझे नाम बनाना है अपना खुद का इंडस्ट्री में? ये ख्याल कब आया आपके दिल में? यस, जब मैंने मॉडलिंग अपनी स्टार्ट की थी,
तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरा लुक बहुत अच्छा आता है, बिकॉज आई एम वेरी बिग फैन ऑफ माई सेल्फ. I always pamper myself in that way. So then I started thinking that yes, I am looking good in pictures also, and I have a very good presence on screen. So I should do it. Then I started doing modeling, and then after that I thought of it that okay, let's try once. Let's go to Bombay. If it's not happening, then just come back. So I thought of it, and then I'm here now, and I have done a lot of things, and I'm getting a lot of prints and a lot of catalogs and lot of movies offers right now I'm getting. So this was the journey. मुंबई की लाइफ को कितना प्रोफेशनल कितना स्ट्रगलिंग माना आपने? किस तरह की लाइफ थी जो आप मुंबई में शुरुआत में आई थी? तो मेरे लिए सच बताऊं तो मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहा है, बट यस अगर आप थोड़ा बहुत रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने ज़्यादा उसको ये करके नहीं लिया कि ये स्ट्रगल है मेरा. बस मैं करती गई अपने आप को और ग्रूम करना और बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड करना, लाइक एक्टिंग क्लासेस, dance classes, so many things I have done. So I never thought of it that it's a struggle. I thought that this is a learning process of mine. So I have taken in that way. कंगना इंडस्ट्री में इतनी सारी हीरोइन, एक तो कंगना आपका खुद का नाम है, पता है कि अभी टॉप पेड एक्ट्रेस कंगना रनावत हैं. Yes. तो उनसे कितने इंस्पायर्ड है, और उसके अलावा कोई ऐसी एक्ट्रेस है जो आपको इंस्पायर करती है? हाँ मेरी प्रियंका चोपड़ा, वो स्टार्टिंग से मेरी इंस्पिरेशन रही हैं. उनकी मैंने फैशन मूवी से उनको स्टार्ट किया था देखना. Yes, एक बार मैंने सोचा था, उस टाइम पे मैं हरियाणा में थी. सो आई थॉट दैट प्रियंका चोपड़ा शी इज़ ब्रिलियंट. सो आई थॉट कि आई शुड ऑल्सो गो, लाइक आई वॉन्टेड टू बी लाइक हर. लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ चांसेस नहीं मिले थे हरियाणा से बाहर निकलने के. देन सडनली धीरे धीरे देन आई डिड इट नाउ. कंगना इतने सारे खान्स हैं, कुमार्स हैं, कपूर्स हैं, किनके साथ काम करने के लिए शायद कि आप फ्यूचर में? मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी, खान्स के साथ भी, कपूर्स के साथ भी सबके साथ काम करना चाहूँगी. लेकिन कोई फेवरेट? ज़्यादातर लड़कियाँ सलमान की फैन होती है, आप किसकी फैन हैं? सलमान की, यस ऑफ कोर्स मैं सलमान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी भी हूँ. बट ऐसा कुछ नहीं कि उन्हीं के साथ करना है, मुझे सबके साथ काम करना है, कपूर्स के साथ भी और खान्स के साथ भी. और ये बताइए किस तरह का रोल प्ले करना चाहती हैं, मतलब फ्यूचर में? अगर एज एन एक्ट्रेस अब कोई चैलेंजिंग रोल होता है, मतलब हर तरह का रोल होता है, रोमांटिक होता है, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल होता है, किस तरह का रोल प्ले करना चाहती हैं? मुझे एक्टिंग वाले एक रियलिस्टिक होता है, मुझे सबसे पहले वो करना है. और एक क्यूट थिंग्स वेरी लव सीन्स, सो लव स्टोरीज, सो लाइक दैट आई हैव टू डू. और काफी सारे डायरेक्टर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स न्यू कमर को चांस देते हैं, महेश भट्ट हो गए या मधुर भंडारकर हो गए, तो किस तरह के डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है मधुर भंडारकर के साथ काम करने की भी, बिकॉज उनके फैशन मूवी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ. और महेश भट्ट जी के साथ भी, क्योंकि मैं राज, जिस्म, मर्डर और समथिंग लाइक दैट आई वांटेड टू डू. सो और ये भी कहा जा रहा है कंगना की, मतलब इंडस्ट्री में सफल होने के बाद एक्सपोज करना पड़ता है, तो इस बात पे कितना मेकिंग करती हैं? इस बात पे तो यकीन, ऑब्वियसली इफ आई एम इन दिस इंडस्ट्री, सो आई हैव टू बिलीव इन दैट. So I'm ready to expose myself, because if it's a character requirement, so I have to do it on screen. So that's not an issue. और बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बैड वर्ड कहा जाता है, बुरी दुनिया कहा जाता है, जो बाहरी लोग हैं उनके लिए. लेकिन आपका अनुभव बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा है? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया अच्छा मतलब बताइए तो. नहीं, माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली ग्रेट. इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री इट्स बैड, बिकॉज जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके नहीं देखते हो तो आप उस चीज़ को नहीं बोल सकते हो. क्योंकि मैं भी घर पे बैठी बैठी बोलती थी कि पता नहीं लड़की कैसे एक्सपोज कर लेती है, कैसे कपड़े पहन लेती हैं, कैसे एक्टिंग कर लेती हैं, लव सीन्स कैसे कर लेती हैं, लव स्टोरीज कैसे बना लेती हैं. तो आई ऑलवेज इन दैट माइंड. सो व्हेन आई ट्राइड इन दिस इंडस्ट्री, देन आई गॉट टू नो दैट इट्स नॉट एन ईजी टास्क. You should have a balls and you should have a guts to do it. So for me it's really good, and I won't say that Bollywood is it's bad thing. So for me it's really good. आप अदाकार के तौर पे बहुत खुशनसीब रही हैं कि आपको डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला. ये मौका मिला कैसे और कितना फॉर्चुनेट समझती हैं आपको इस चीज़ के लिए? ऑफ कोर्स मेरे लिए फॉर्चुनेट ही था ये, बिकॉज इंद्र कुमार जी की आप बेटा फिल्में देखिए, उनकी इश्क देखिए, उनकी फिल्म देखिए धमाल, डबल धमाल, अब उनकी मस्ती, ग्रैंड मस्ती, एंड नाउ द सिक्वल इज द ग्रेट ग्रैंड मस्ती. तो ऑफ कोर्स उनके साथ तो हर कोई काम करना चाहता है. एंड व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, सो आई थॉट दैट आई शुड ग्रैब इट एंड आई शुड डू इट. And when I got this offer, and then I said quickly, yes, of course I have to do it. And then I said, yes, I will do it. And then now we are shooting, and tomorrow also I'm shooting. और ये भी जानने को, पहला दिन में जो शूट था ग्रेट ग्रैंड मस्ती का, वो कैसा था, किसके बीच में था,
कितना मजा मस्ती हुआ था? क्योंकि ग्रेट ग्रैंड मस्ती नाम है फिल्म का, तो मस्ती तो काफी हुई होगी। नहीं, ऑफ कोर्स इसमें मस्ती तो है एंड कुछ चीज़ें डबल मीनिंग, ऑफ कोर्स ये मूवी डबल मीनिंग ही है। तो बहुत मज़ा आया उस दिन, बट आई वॉज बिट नर्वस बिकॉज आई नेवर वर्क लाइक एज सच बिग स्टार्स like Ritesh, Aftab and Vivek Oberoi. So my co-stars are really great and I was a little shy also. I was thinking कि इन सब लोगों के बीच में मैं काम करूँगी तो पता नहीं मैं गलत ना बोल दूँ, थोड़ा सा इतना डरी हुई भी थी मैं, सहमी हुई थी थोड़ा सा। लेकिन जब मेरा फर्स्ट टेक हुआ तो मुझे एकदम डर नहीं लगा बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि दिस इज़ योर फर्स्ट चांस एंड यू शुड कवर इट अप. सो I have taken in that way and I started laughing in my vanity so that I can be in that zone, so I can be I can give the laughter shots also and in that way मेरा डर चला जाए. और जब भी मैं डरती हूँ या फिर मुझे घबराहट होती है तो मैं जोर जोर से शीशे के सामने हंसना शुरू कर देती हूँ. तो मेरे लिए फिर उसके बाद में फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सेट पे. आखिर सर ये पूछना चाहूँगा, इंडस्ट्री में सफल होने के लिए सबसे मूल मंत्र क्या है? लुक्स अच्छे होने चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट अच्छे होने चाहिए, हार्ड वर्क है, या फिर क्या ऐसा चीज़ है जो कि इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए होना चाहिए? इंडस्ट्री में सर्वाइव और सक्सेसफुल के लिए यू शुड बी हार्ड वर्कर ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स लुक मैटर्स. और आपका स्क्रीन प्रेजेंस भी उतना अच्छा होना चाहिए और साथ साथ में आपकी एक्टिंग भी अच्छा होना चाहिए बिकॉज इफ़ यू आर अ गुड एक्टर तो आप सर्वाइव कर सकते हो. अगर आप एक्टर ही अच्छे रही हो तो एक स्क्रीन अच्छा होने का कोई मतलब नहीं होता. अपना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू.